بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کریم کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ عزیز بچوں، آج ہم نے جس آرٹیکل کو ڈسکس کرنا ہے اس کا نام ہے کلوننگ۔ آئیے بیٹا کلوننگ کو ڈیفائن کرتے ہیں۔ بیٹا وہ کہتا ہے دی پروسیس آف پروڈکشن آف کلونز از کالڈ کلوننگ۔ کلونز پیدا کرنے کا عمل پروسیجر کلوننگ کہلاتا ہے۔ ابھی ہمیں یہ نہیں معلوم کہ واٹ آر کلونز، اور نہ بیٹا ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، بس ابھی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ وہ عمل جس میں کلونز تیار کیے جاتے ہیں کلوننگ کہلاتا ہے۔ اس کی ایک اور ڈیفینیشن جو آپ کی کتاب نے لکھی ہے بیٹا وہ یہ ہے، کلوننگ از اے ٹیکنالوجی فار اچیونگ یوجینک ایمز۔ ایمز کا بیٹا مطلب ہوتا ہے مقاصد، اور یو کا مطلب ہوتا ہے ٹرو، پیور، جینک، جینز، اچیونگ، حاصل کرنا۔ تو بیٹا اب اس کو اگر میں اس کا ترجمہ کروں اس ڈیفینیشن کا تو یہ کچھ یوں ہوا کہ کلوننگ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جس میں ہم اپنے پیور جینز حاصل کرنے کے مقاصد کو مکمل کرتے ہیں، یعنی ایسا عمل جس میں پیور جینز حاصل کرنے کے مقاصد کو پورا کیا جاتا ہے کلوننگ کہلاتا ہے۔ اب ہمیں یوجینک ایمز کا بھی نہیں پتا، یہاں ہمیں کلونز کا نہیں پتا، یہاں ہمیں یوجینک ایمز کا نہیں پتا۔ چلیے پہلے بیٹا میں یوجینک ایمز کو ڈسکرائب کر دوں۔ یو کا مطلب میں نے پیور بتایا، جینک جینز، ایمز مقاصد۔ یہ بیٹا ایک ایسا مقصد ہے سائنٹسٹ کا جس میں ان کا نظریہ یہ ہے کہ کائنات میں جتنے جانور ہیں وہ ایسے ہونے چاہیے کہ وہ بہترین جینز کے حامل ہوں۔ مطلب دوسرے الفاظ میں کہہ لیجئے کہ سائنٹسٹ چاہتے ہیں کہ یہ دنیا صرف اچھے جانوروں سے بھر جائے، ویلیویبل جانوروں سے، اس میں انسان کو بھی آپ انکلوڈ کر لیں کہ بہترین کریکٹرسٹکس والے انسان جن میں محنت کی، خوبصورتی کی، ذہانت کی خوبیاں موجود ہوں، رواداری کی، برداشت کی، صبر کی، تحمل کی خوبیاں ہوں، وہ انسان بچ جائیں۔ ایسے ہی یہی خوبیاں اگر آپ کسی جانور میں دیکھنا چاہیں تو یعنی اچھی خصوصیات کے مالک جانور اس دنیا میں ہونے چاہیے، بقیہ جو ہے وہ صفحہ ہستی سے مٹ جانے چاہیے۔ یہ میں اگریسو الفاظ میں سائنسدانوں کے مقاصد جو ہیں وہ بتا رہا ہوں۔ اگر میں اس کا سافٹ امیج بلڈ کرنا چاہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سائنٹسٹ یہ ٹرائی کر رہے ہیں کہ اس دنیا میں اچھی خصوصیات کے حامل جانور ہونے چاہیے، انکلوڈنگ ہیومنز، انکلوڈنگ ادر ورٹیبریٹس اینڈ ادر اینیملز۔ تو کلوننگ ایسی ٹیکنالوجی ہے جس کے ذریعے آپ یوجینک ایمز حاصل کر سکتے ہیں یا کوشش کر سکتے ہیں یوجینک ایمز حاصل کرنے کی، پیور جینز والے جاندار حاصل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ ابھی بھی ہمیں کلون کے بارے میں نہیں پتا، آئیے بیٹا کلون دیکھتے ہیں پھر ہمیں پتا چلے گا کہ کلوننگ ہے کیا۔ A clone may be a cell، یہ ایک سیل بھی ہو سکتا ہے، اور an individual، یہ ایک فرد بھی ہو سکتا ہے۔ فرد سے مراد کوئی ایک گائے، کوئی ایک بکری، کوئی ایک انسان، یعنی کسی بھی جانداروں کے ایک فرد کو، ایک ممبر کو آپ انڈیویجول کہہ سکتے ہو۔ دیٹ از جینیٹیکلی آئیڈینٹیکل، جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ جینیٹیکلی آئیڈینٹیکل ہوتے ہیں، یعنی جینز کے لحاظ سے سیم ہوتے ہیں، جینز کے لحاظ سے ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے ہوتے ہیں، اینڈ آر پروڈیوسڈ اے سیکشولی، اور یہ سارے اے سیکشول طریقے سے پیدا کیے گئے ہوتے ہیں۔ آئیے بیٹا میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں۔ ایک کلون کوئی بھی سیل ہو سکتا ہے یا کوئی انڈیویجول ہو سکتا ہے جو ہم نے اے سیکشول طریقے سے پیدا کیا ہو، اور وہ کریکٹرسٹکس کے اعتبار سے اپنے پیرنٹ سے ملتا ہو اور اپنے ساتھ پیدا ہونے والے دوسرے کلونز سے ملتا جلتا ہو، یعنی جس سے پیدا کیا، اگر سیل ہے تو وہ سیل سے ہی پیدا کریں گے ہم، تو یہ پیدا ہونے والا سیل اگر پیرنٹل سیل سے مل رہا ہے اور اے سیکشول طریقے سے پیدا ہوا ہے تو وہ کلون ہے۔
अगर किसी जानदार से हमने नया जानदार पैदा कर लिया और एसेक्सुअल तरीके से पैदा किया है तो वो उस जानदार का क्लोन है। इसको बेटा जब हम इसकी मिसालें डिस्कस करेंगे, टाइप्स डिस्कस करेंगे तो आपको मजीद समझ आएगी। क्लोन क्या है? क्लोनिंग के जरिए पैदा होने वाला जानवर या सेल, और ये पौधा भी हो सकता है, ये कोई दूसरा जानदार भी हो सकता है। कोई भी जानदार चीज जो क्लोनिंग के जरिए पैदा की जाए वो क्लोन ही होती है, और क्लोन पैदा करने का अमल क्लोनिंग कहलाता है। अभी इतना समझ लीजिए, ये बात इंशाल्लाह अभी हम मजीद इलेबोरेट करेंगे। बेटा वो कहता है जनरली नो नॉर्मल एनिमल रिप्रोड्यूसेस बाय क्लोनिंग। कोई भी नॉर्मल जानवर जो है वो क्लोनिंग के जरिए रिप्रोड्यूस नहीं करता। अच्छा, ये नॉर्मल एनिमल से क्या मुराद है? क्या कुछ एनिमल अबनॉर्मल भी होते हैं? तो बेटा मैं आपको बताता चलूं, यहां नॉर्मल का मतलब हायर एनिमल है, वर्टिब्रेट्स। ठीक है, कोई भी जो है रीढ़ की हड्डी रखने वाला जानवर जो है, जिसे आप फकारिया जानदार भी कहते हो, वर्टिब्रेट कहते हो, वर्टिब्रेट्स एनिमल्स जो है वो क्लोनिंग के जरिए रिप्रोड्यूस नहीं करते। लेकिन कुछ लोअर एनिमल्स जिनमें इंसेक्ट्स आते हैं एंड लोअर प्लांट्स डू इट इन सम कंडीशन। कुछ ऐसे इंसेक्ट्स भी हैं और कुछ ऐसे पौधे भी हैं बेटा जो कुछ क्रिटिकल कंडीशंस में क्लोनिंग के जरिए अपनी तादाद बढ़ाते हैं, यानी रिप्रोड्यूस करते हैं। वेयरएज फ्यू डू सो रेगुलरली। कुछ इंसेक्ट्स और प्लांट्स तो कुछ कंडीशन में क्लोनिंग करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो हमेशा ही क्लोनिंग करते हैं। उम्मीद है इस लाइन की बेटा आपको समझ आई होगी। इस लाइन में वो दो कंडीशंस बता रहा है कि कुछ इंसेक्ट्स और प्लांट्स जो हैं वो कुछ कंडीशंस में क्लोनिंग करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स, लोअर एनिमल्स और लोअर प्लांट्स हैं जो रेगुलरली ही अपनी तादाद क्लोनिंग के जरिए बढ़ाते हैं। आइए बेटा टाइप्स ऑफ क्लोनिंग को डिस्कस करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लोनिंग। नंबर वन इज न्यूक्लियर क्लोनिंग एंड सेकंड वन इज एम्ब्रियो क्लोनिंग। आइए बेटा न्यूक्लियर क्लोनिंग को देखते हैं। न्यूक्लियर क्लोनिंग इंतहाई अहम भी है और आसान भी है। अगर आप तवज्जो देंगे तो बेटा इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको इसकी समझ आने वाली है। हमारे पास एक एग है, दैट इज फर्टिलाइज्ड एग। बेटा फर्टिलाइज्ड एग से क्या मुराद? ऐसा स्पर्म, ऐसा एग जिसकी स्पर्म से फ्यूजन हो चुकी हो, यानी फर्टिलाइज, यानी जायगोट कह लीजिए आप। ये हमारे पास एक जायगोट है, एक फर्टिलाइज्ड एग है। इसका न्यूक्लियस हमने निकाल दिया है। क्यों निकाला है मैं अभी बताता हूं। फिर हमारे पास ये एक सेल है, इसका न्यूक्लियस भी हमने निकाल लिया, लेकिन ये वो सेल है और इसका न्यूक्लियस वो न्यूक्लियस है जिसमें जीन्स, जिसमें डीएनए हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक है। यानी ये उस जानवर का, उस पौधे का या किसी जानदार का सेल है जिसके अंदर वो कैरेक्टर मौजूद हैं जो हम चाहते हैं। ठीक है, किसी भी जानदार में कोई कैरेक्टर क्यों आता है? डीएनए की वजह से। और डीएनए कहां होता है? न्यूक्लियस में होता है। तो हमारे पास ये वो डोनर सेल है जिसका न्यूक्लियस हमें चाहिए, यानी जिसका न्यूक्लियस वो न्यूक्लियस है जिसमें ऐसी जीनोटाइप है जो हमारी ख्वाहिश करदा है। तो बेटा हमने ये न्यूक्लियस निकाल दिया क्योंकि ये तो हमें चाहिए नहीं। इससे पता नहीं कैसा जानवर पैदा होने वाला है, कैसा पौधा पैदा होने वाला है। ठीक है, हम नहीं जानते, लेकिन इस जानदार की खुसूसियत तो हम जानते हैं। इसका न्यूक्लियस निकालेंगे हम, और जिस फर्टिलाइज्ड एग का हमने न्यूक्लियस निकाला था, इस न्यूक्लियस को इसमें डाल दिया। ये वो फर्टिलाइज्ड एग है जिसका न्यूक्लियस हम निकाल चुके हैं, लेकिन ये हमने नया न्यूक्लियस लगा दिया। कहां से लिया हमने? ये हमने डोनर से लिया है, डोनर सेल से लिया है, दैट हैव डिजायर्ड कैरेक्टर। ठीक है, एंड नाउ दिस एग इज विद न्यू डिजायर्ड न्यूक्लियस। ये नया जो है न्यूक्लियस हमने इस फर्टिलाइज्ड एग में डाल दिया है। अब जब बेटा ये जाइगोट दोबारा से रिन्यू हो गया, न्यूक्लियस आ गया इसमें, अब इसको हम पुटिंग इट इन सूटेबल वॉर्म, इसको किसी जो है सूटेबल वॉर्म में, सूटेबल बच्चादानी में बेटा हम इसको लगा देंगे, और ये उस बच्चादानी में बेटा ये गैसिटेशन पीरियड मुकम्मल करेगा। गैसिटेशन पीरियड कौन सा पीरियड होता है?
वो अरसा जो एक बच्चा मां के पेट में, मां की वॉर्म में गुजारता है, उसे गैसिटेशन पीरियड कहते हैं। गैसिटेशन पीरियड के बाद बेटा जो जानवर, जो पौधा पैदा होगा वो हमारा डिजायर्ड होगा। यहां मैंने एनिमल लिखा है, आप प्लांट भी लिख सकते हैं, लेकिन जब बच्चादानी की बात करेंगे तो फिर एनिमल की ही बात होगी। यानी ये प्रोसीजर, मैं जो मिसाल आपको समझा रहा हूं, ये प्रॉपर प्रोसीजर एनिमल के लिए प्रोसीजर है, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहां पर डिजायर्ड एनिमल लिख दिया। ये वो एनिमल पैदा हुआ है जो हमारा डिजायर्ड करेक्टर्स वाला एनिमल है। क्यों डिजायर्ड करेक्टर है इसमें? क्योंकि इसमें हमने अपनी डिजायर का न्यूक्लियस डाला है और उस न्यूक्लियस में वो करेक्टर है जो हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक है। बेटा ये जो प्रोसीजर है ना, न्यूक्लियर क्लोनिंग, ये सबसे पहले स्कॉटलैंड में एक साइंटिस्ट था एयान विलमेट, उसने और उसके साथियों ने मिलकर परफॉर्म किया। और इस प्रोसीजर के तहत उन्होंने एक बेड़ पैदा की जिसे हम डोली बेड़ के नाम से जानते हैं। और यह प्रोसीजर 1997 में 1997 में बेटा परफॉर्म किया गया था। दिस टाइप ऑफ क्लोनिंग परफॉर्म्ड फर्स्टली ऑन मैमल्स बाय साइंटिस्ट इन स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड के साइंटिस्ट ने इनको पहली बार मैमल्स पर परफॉर्म किया एंड दे सक्सीडेड टू प्रोड्यूस डॉली शीप। तो उन्होंने डॉली बेड़ को बेटा जो है प्रोड्यूस किया था। तो ये हमारे पास न्यूक्लियर क्लोनिंग थी। उसके बाद बेटा हमारे पास है एम्ब्रियो क्लोनिंग। इंतहाई आसान है बेटा। हमारे पास एक फर्टिलाइज एग है, उसके अंदर ये उसका न्यूक्लियस मौजूद है। अब आप जानते हैं बेटा फर्टिलाइज एग को हम जाइगोट भी कहते हैं। और जाइगोट जो है ये डिवाइड होता है, यानी 2 में तकसीम हुआ, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, यानी सेल में इजाफा होता रहता है। और इस स्टेज पर हम इसको, जब सेल से इजाफा होता है, इसको हम क्या जानते हैं? हम इसे एम्ब्रियो कहते हैं। जब जाइगोट डिवाइड होने लगता है और काफी सारे सेल बना लेता है तो उस दौरान हम उसे क्या कहते हैं? एम्ब्रियो कहते हैं। तो बाज औकात बेटा ये यहां पे 2 सेल भी मैं शो कर सकता था, मैंने 4 कर दिए, आप चाहे 2 कर लीजिएगा। मतलब अगर आप डायग्राम बनाते हैं तो 1 से 2 सेल बना लीजिएगा, 2 सेल्ड स्टेज बना लीजिएगा। ये मैंने 4 सेल्ड स्टेज बनाई है एम्ब्रियो की। तो बेटा समहाउ अगर आप इस सेल को इससे अलग कर लें, इसको इससे, इसको इसके, यानी चारों को अलहदा अलहदा कर दें, और ये मां की वॉर्म में ये चारों सेल एक अलहदा अलहदा जाइगोट के तौर पर जो है एक्ट करेंगे। यानी ये भी जाइगोट का काम देगा, ये भी। और अब इस एक फर्टिलाइज एग से 4 जाइगोट बन चुके, एक जाइगोट से 4 जाइगोट। लेकिन शर्त क्या है? इनको सेपरेट करना जरूरी है। अब ये चारों सेपरेटेड, या अगर 2 होते तो 2 सेपरेटेड, अगर 6 होते तो 6 सेपरेटेड जाइगोट का काम करते। और इन 6 से 6 जो है फीटस बनते, 6 बच्चे पैदा होते, और ये 6 के 6 आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते होते, आपस में मिलते जुलते होते। लेकिन याद रखिए बेटा ये पेरेंट्स से नहीं इन्होंने मिलना था। आपस में मिल रहे, पेरेंट्स से क्यों नहीं मिलना था? क्योंकि बेटा ये जो फर्टिलाइज एग है इसमें 23 क्रोमोसोम जो है वो वालदा से आए हैं, और इसमें 23 क्रोमोसोम जो है वो वालिद से आए, मेल से और फीमेल से। ठीक है बेटा। तो इसमें आधा डीएनए सेगमेंट मां का, आधा डीएनए सेगमेंट बाप का। इस जाइगोट में खसूसियात मां बाप दोनों की हैं। अब इस जाइगोट से आगे 4 बने हैं, तो इनमें भी इसी न्यूक्लियस की कॉपीज आई हैं। ये आपस में तो इस जैसे ही होंगे, इससे जो औलाद पैदा होनी थी ये चारों भी उसी जैसी औलाद पैदा करेंगे, ये आपस में आइडेंटिकल होंगे। और अगर ये बेटियां हैं तो बेटियां ही पैदा होंगी चारों, और अगर ये बेटे के लिए था तो ये चारों भी बेटे ही पैदा होंगे, और खसूसियत के एतबार से भी जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे, क्योंकि जीन्स वही हैं जो इस न्यूक्लियस में थी। तो आपस में आइडेंटिकल, लेकिन पेरेंटल आइडेंटिकल नहीं है। ये जो बेटा जुड़वा बच्चे एक जैसे पैदा होते हैं, हम मुआशरे में देखते हैं, तो असल में वो इसी प्रोसीजर के जरिए होते हैं कि एक स्पर्म ने एक एग को फर्टिलाइज किया, वो एग जो है जब 2 की स्टेज पर पहुंचा तो वो दोनों समहाउ डिवाइड हो गए, और डिवाइड होकर दोनों अलहदा अलहदा जाइगोट के तौर पर डिवेलप हो गए, और 2 जो है आप कह लें आइडेंटिकल ट्विंस प्रोड्यूस हो गए। तो बेटा वो कहता है एम्ब्रियोनिक सेल्स में सेपरेट, दीज एम्ब्रियोनिक सेल्स में सेपरेट टू फॉर्म आइडेंटिकल ट्विंस आर ट्रिपलेट्स, या फिर 4, 5, 6
ऐसे केसेस भी देखने को मिलते हैं। आइडेंटिकल ट्विन्स आर प्रोड्यूस्ड इन दिस मैनर, दीज ट्विन्स आर आइडेंटिकल टू ईच अदर बट दे कैरी क्रोमोसोम फ्रॉम ईच पेरेंट। तो इनमें क्रोमोसोम दोनों पेरेंट से होते हैं, मां से भी और बाप से भी। यानी यहां तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये देखिए यहां तक, ये जाइगोट बनने तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन इससे आगे ये जो 4 बने ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से नहीं बने, यहां गैमेट्स की फ्यूजन नहीं है, बल्कि ये एसेक्सुअल तरीके से बने हैं। और अभी हमने डेफिनेशन में कहा था कि क्लोनिंग जो है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीकाकार है। अब बेटा इसके एडवांटेजेस क्या हैं हमारे पास, जो ये हमने पढ़ी है एम्ब्रियो क्लोनिंग, इसका एडवांटेज बेटा ये है, दिस प्रोसीजर इज बीइंग यूज्ड टू प्रोड्यूस आइडेंटिकल कैटल और अदर फार्म एनिमल्स। बेटा फर्ज करें हमारे पास एक बहुत अच्छी भैंस है, खूबसूरत भी बहुत है और बहुत अच्छा और बहुत गाढ़ा और बहुत ज्यादा दूध देती है, यानी हर एतबार से बेहतरीन है। तो हम चाहते हैं कि इस जैसी ही कोई भैंस प्रोड्यूस कर ली जाए, हम उसमें कोई रद्दो बदल नहीं चाहते। तो अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए उस भैंस से बच्चे लेंगे तो वो मुमकिन है अपनी मां से ज्यादा बेहतर हूं या कम बेहतर हूं, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन हम चाहते हैं इसी जैसी भैंस लेना, तो फिर बेटा ये जो हमने न्यूक्लियर क्लोनिंग देखी या एम्ब्रियो क्लोनिंग देखी, हम इसको यूज करते हुए अपनी भैंस जैसी जो है नई भैंस पैदा कर सकते हैं। अब वो पैदाइश के वक्त तो भैंस नहीं होगी, बच्चा होगा, लेकिन बड़ा होकर वो भी भैंस बन सकता है। ठीक है जी। उसके बाद बेटा कमर्शियल वैल्यू देखें तो मैन इज गोइंग टू अडॉप्ट क्लोनिंग टेक्निक टू प्रोड्यूस वैल्यूएबल एनिमल्स ऑफ नॉन पेडिग्री सच एज हॉर्सेज एंड बुल्स। आपने बेटा देखा, आपने वो देखा होगा फ्रांस में बुल्स रेस भी होती है और उनसे इंसान और बुल्स की लड़ाइयां भी होती हैं। आपने देखा होगा वो रिंग होता है, उसमें वो थका रहे होते हैं बुल्स को, ठीक है, बैंसा होता है बड़ा सा। अब उन बैंसों की वो जो सांड होता है उसकी बहुत ज्यादा कीमत होती है और वो खसूसियत के एतबार से भी बड़े एक्सक्लूसिव होते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि वैसा कोई और बैंसा भी प्रोड्यूस किया जाए तो फिर हम वहां क्लोनिंग को यूज करते हैं। हमारे पास बहुत अच्छा कोई घोड़ा है और वो बहुत कम है दुनिया में पाया जाता और उसकी कीमत भी बहुत ज्यादा है, तो फिर बेटा हम क्या करेंगे, हम उस घोड़े की और सारी कॉपीज तैयार करने के लिए क्लोनिंग का सहारा लेंगे। ठीक है बेटा। तो वो कहते हैं कि इंसान क्लोनिंग को इसलिए भी इख्तियार कर रहा है कि वो वैल्यूएबल एनिमल्स पैदा कर सके जिनकी पेडिग्री नॉन है। पेडिग्री कहते हैं नस्ल को, ठीक है, शजरा नसब को भी कहते हैं, यानी जिसका पता हो कि इसका बाप ये खसूसियात का हामिल था, इसकी मां ये खसूसियात की हामिल थी, इसका दादा ये खसूसियात का हामिल था, इसकी दादी ये खसूसियात की हामिल थी। नॉन पेडिग्री का क्या मतलब, जिसका शजरा नसब हमें मालूम हो, जिसकी नस्ल हमें, जिसकी ब्लड लाइन हमें मालूम हो। डिमेरिट्स ऑफ क्लोनिंग क्या है बेटा, साइंटिस्ट आर मेकिंग अटेम्प्ट टू क्लोन ह्यूमन एम्ब्रियो व्हिच दे बिलीव कैन सर्व एज ट्रांसप्लांट डोनर। बेटा साइंटिस्ट जो है आज कोशिश कर रहे हैं कि इंसान का एम्ब्रियो, इंसानी एम्ब्रियो जो है उसको भी क्लोन किया जाए, यानी क्लोनिंग के जरिए इंसान को भी पैदा करने की कोशिश की जा रही है। और वो साइंटिस्ट समझते हैं कि अगर हमने क्लोन इंसान पैदा कर लिया तो उसका हमें यह फायदा होगा कि हमें ऑर्गन ट्रांसप्लांट डोनर मिल जाएगा। मतलब फर्ज करें किसी इंसान का जिगर खराब है तो हम अपने जो क्लोन करदा इंसान है उससे जिगर ले सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन बहुत सारे मजहबी लोग जो है वो इस पर तनकीद कर रहे हैं और उनके ख्याल में इंसान की क्लोनिंग जो है ये एक आप कह लें गैर इखलाकी अमल है, तो इसलिए ये कंट्रोवर्शियल इशू कहलाता है। इस पर अगर कहीं कोशिशें हो भी रही हैं ममालिक में तो वो डके छुपे अंदाज में हो रही हैं। अलल हैरान कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी लेबॉर्ट्री या कोई भी मुल्क जो है वो इंसानी क्लोनिंग पर काम नहीं कर रहा, लेकिन डके छुपे इस पर काम हो रहा है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप गूगल पर लिखिए ह्यूमन एनिमल कायमीरा, वहां आर्टिकल पढ़िए और तस्वीर देखिए तो आप देखेंगे कि आपको ऐसे एनिमल्स देखने को मिलेंगे जिनमें इंसानी आज़ा जो है ग्रो किए होते हैं। ऐसा करते हैं कि जानवरों के एम्ब्रियो में इंसानी जीन लगा देते हैं, तो जब वो जानवर पैदा होता है तो उसमें कुछ ऑर्गन इंसानी नौयत के होते हैं। तो बहरहाल ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक। हमने क्लोनिंग को पढ़ा। क्लोनिंग एसेक्सुअल तरीकाकार है जिसके जरिए किसी भी सेल की, किसी पौधे के सेल की, किसी पौधे की, किसी जानवर के सेल की या किसी जानवर की
एसेक्सुअल तरीके से कॉपीज तैयार की जाती हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।